أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج انشاءاللہ ہم اپنی کلاس کا آغاز 19 پارے سے کریں گے. لاسٹ کلاس میں ہم نے 19 پارے کا کچھ حصہ کور کر لیا تھا کیونکہ میں یہ نہیں چاہ رہی تھی کہ میں سورہ میں کچھ بریک کروں کیونکہ تھوڑی سی آیات رہ گئی تھی. آج انشاءاللہ ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں سورۃ الشعراء سے. تھوڑا سا اس کا تعارف دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک روایت کے مطابق یہ سورہ جو ہے یہ سورۃ واقعہ کے بعد نازل ہوئی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا وہ زمانہ تھا جس میں کفار مکہ آپ کی دعوت کو بڑے زور و شور سے مخالفت کرتے ہوئے آپ سے اپنی پسند کے معجزے مانگنے کی مطالبے کر رہے تھے. اس صورت کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی بھی دی گئی اور کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کی طرف توجہ دلا کر اشارہ فرمایا گیا کہ اگر کسی کے دل میں انصاف ہو اور وہ سچے دل سے حق کی تلاش کرنا چاہتا ہو تو اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کی یہ نشانیاں اس کی توحید کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں اور اسے کسی اور معجزے کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی ضمن میں پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کی امتوں کے واقعات یہ بیان کرنے کے لیے سنائے گئے ہیں کہ ان کی قوموں نے بھی معجزے مانگے تھے. انہیں وہی معجزے دکھائے گئے جو انہوں نے مانگے تھے لیکن پھر بھی وہ نہیں مانے جس کے نتیجے میں انہیں عذاب الہی کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ جب منہ مانگے معجزے دیکھنے کے باوجود کوئی قوم ایمان نہیں لاتی تو اس کو ہلاک کر دیا جاتا ہے. اسی بنا پر کفار مکہ کو مہلت دی جا رہی ہے کہ وہ نت نئے معجزات کا مطالبہ کرنے کے بجائے توحید و رسالت کے دوسرے دلائل پر کھلی آنکھوں سے غور کرے اور ایمان لے آئیں اور ہلاکت سے بچ جائے. کفار مکہ جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کاہن کہتے تھے, کبھی جادوگر اور کبھی شاعر کا نام دیتے تھے. سورت کے آخری رکوع میں انہی باتوں کی تردید بھی فرمائی گئی اور کاہنوں اور شاعروں کی خصوصیات بیان کر کے جتایا گیا کہ ان میں سے کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں پائی جاتی. اسی ضمن میں آیت نمبر 224 میں شعراء کی خصوصیت بیان کی گئی ہیں. اسی وجہ سے اس سورت کا نام شعراء رکھا گیا ہے. تو آئیے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورہ مکی ہے اور اس میں 227 آیتیں اور 11 رکوع ہیں. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. قاسین میم یہ حروف مقطعات ہیں. یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو حق کو واضح کرنے والی ہے. اے پیغمبر شاید تم اس غم میں اپنی جان کو ہلاک کیے جا رہے ہو کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے.
अगर हम चाहें तो उन पर आसमान से कोई ऐसी निशानी उतार दें कि उसके आगे उनकी गर्दनें झुक जाएं। इनका हाल तो ये है कि इनके पास खुदाए रहमान की तरफ से जो नई नसीहत आती है ये उससे भी मुंह मोड़ लेते हैं। और आयत नंबर 6 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, इसी तरह उन्होंने हक को झुटला दिया है। चुनाचे ये लोग जिन बातों का मजाक उड़ाते रहे हैं, अब अनकरीब उनके ठीक ठीक हकायत उनके सामने आ जाएंगे। और क्या उन्होंने जमीन को नहीं देखा कि हमने इसमें हर नफीस किस्म की कितनी चीजें उगाई हैं। यकीनन इन सब चीजों में इबरत का बड़ा सामान है, फिर भी इनमें से अक्सर लोग ईमान नहीं लाते हैं। और यकीन रखो कि तुम्हारा परवरदिगार साहिब इक़्तिदार भी है और बहुत मेहरबान है। और उस वक़्त का हाल सुनो जब तुम्हारे परवरदिगार ने मूसा को आवाज देकर कहा था कि इस जालिम कौम के पास जाओ, यानी फिरौन की कौम के पास। क्या उनके दिल में खुदा का खौफ नहीं है? मूसा ने कहा कि मेरे परवरदिगार, मुझे डर है कि वो मुझे झूठा बनाएंगे और मेरा दिल तंग होने लगता है और मेरी जुबान भी नहीं चलती। इसलिए आप हारून को भी नबूवत का पैगाम भेज दीजिए। और मेरे खिलाफ इन लोगों ने एक जुर्म भी आयद कर रखा है जिसकी वजह से मुझे डर है कि वो मुझे कत्ल ना कर डाले। आयत नंबर 15 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अल्लाह ने फरमाया कि हरगिज नहीं, तुम दोनों हमारी निशानियां लेकर जाओ, यकीन रखो कि हम तुम्हारे साथ हैं, सारी बातें सुनते रहते हैं। अब तुम दोनों फिरौन के पास जाओ और कहो कि हम दोनों रब्बुल आलमीन की तरफ से पैगंबर हैं और ये पैगाम लाए हैं कि तुम बनी इसराइल को हमारे साथ भेज दो। फिरौन ने जवाब में मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, क्या हमने तुम्हें इस वक्त अपने पास रखकर नहीं पाला था जब तुम बिल्कुल बच्चे थे? और तुमने अपनी उम्र के बहुत से साल हमारे यहाँ ही गुजारे हैं और जो हरकत तुमने की थी वो भी कर गुजरे और तुम बड़े नाशुक्र आदमी हो। मूसा ने कहा कि उस वक्त वो काम मैं ऐसी हालत में कर गुजरा था कि मुझे नहीं पता था। और आयत नंबर 21, चुनाचे जब मुझे तुम लोगों से खौफ हुआ तो मैं तुम्हारे पास से फरार हो गया, फिर अल्लाह ने मुझे हिकमत अता की और पैगंबरों में शामिल फरमा दिया। और वो एहसान जो तुम मुझ पर रख रहे हो इसकी हकीकत यह है कि तुमने सारे बनी इसराइल को गुलाम बना रखा है। फिरौन ने कहा कि ये रब्बुल आलमीन क्या चीज है? मूसा ने कहा कि वो सारे आसमान और जमीन का और इस सारी चीजों का परवरदिगार है जो उसके दरमियान भी पाई जाती हैं, अगर तुम वाकई यकीन करना चाहते हो। फिरौन ने अपने इर्द गिर्द के लोगों से कहा, सुन रहे हो कि नहीं? मूसा ने कहा, वो तुम्हारा भी परवरदिगार है और तुम्हारे पिछले बाप दादा का भी। फिरौन बोला, तुम्हारा ये पैगंबर जो तुम्हारे पास भेजा गया है ये तो बिल्कुल ही दीवाना है। आयत नंबर 28, मूसा ने कहा, वो मशरिक और मगरिब का भी परवरदिगार है और उसके दरमियान सारी चीजों का भी, अगर तुम अकल से काम लो। कहने लगा, याद रखो, अगर तुमने मेरे सिवा किसी और को माबूद माना तो मैं तुम्हें जरूर उन लोगों में शामिल कर दूंगा जो जेल खाने में पड़े हुए हैं। मूसा बोला, और अगर मैं तुम्हें ऐसी कोई चीज दिखाऊं जो हक को वाजे कर दे फिर भी? फिरौन ने कहा, अच्छा अगर वाकई सच्ची हो तो ले आओ वो चीज। चुनाचे मूसा ने अपना असा फेंका और देखते ही देखते वो खुला अस्तहा बन गया और उन्होंने अपना हाथ बगल से खींच कर निकाला तो पल भर में वो सब देखने वालों के सामने सफेद हो गया। फिरौन ने अपने इर्द गिर्द के सरदारों से कहा कि यकीनन ये कोई माहिर जादूगर है, ये चाहता है कि अपने जादू के जरिए तुम्हारी सारी सरजमीन से निकाल बाहर करे। अब बताओ तुम्हारी क्या राय है? उन्होंने कहा कि इनको और इनके भाई को कुछ मोहलत दीजिए और तमाम शहरों में हरकारे भेज दीजिए। और आयत नंबर 37, जो हर माहिर जादूगर को आपके पास ले आएंगे और इन जादूगरों का मुकाबला करेंगे। चुनाचे एक दिन मुकर्रर वक्त पर सारे जादूगर जमा कर लिए गए और लोगों से कहा गया कि क्या तुम लोग जमा हो रहे हो? शायद अगर ये जादूगर ही गालिब आ गए तो हम इन्हीं के रास्ते पर चलें। फिर जब जादूगर आए तो उन्होंने फिरौन से कहा कि ये बात तो यकीनी है ना कि अगर हम गालिब आ गए तो हमें कोई इनाम मिलेगा? फिरौन ने कहा कि हाँ हाँ, और तुम्हें इस सूरत में मुकर्रब लोगों में भी जरूर शामिल किया जाएगा। मूसा ने इन जादूगरों से कहा, जो कुछ तुम्हें फेंकना है फेंको। इस पर उन जादूगरों ने अपनी रस्सियां और लाठियां जमीन पर डाल दी और कहा कि फिरौन की इज्जत की कसम, हम ही गालिब आने वाले हैं। अब मूसा ने अपना असा जमीन पर डाला तो अचानक उसने अस्तहा बनकर उन सांपों को निगलना शुरू कर दिया जो वो झूठ मूठ बना रहे थे। बस ये देखना था कि जादूगर सजदे में गिर गए।
कहने लगे कि हम रब्बुल आलमीन पर ईमान ले आए जो मूसा और हारून का परवरदिगार है। फिरौन बोला, तुम मेरी इजाजत देने से पहले ही मूसा पर ईमान ले आए। साबित हुआ कि ये तुम सब का सरगना है जिसने तुम्हें जादू सिखाया है। अच्छा, अभी तुम्हें पता चल जाएगा, मैं तुम सब के एक तरफ के हाथ और दूसरी तरफ के पांव कटवा दूंगा और तुम सबको सूली पर लटका दूंगा। जादूगरों ने कहा कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमें यकीन है कि हम लौट कर अपने परवरदिगार के पास जरूर चले जाएंगे। हम तो शौक से उम्मीद लगाए हुए हैं कि हमारा परवरदिगार इस वजह से हमारी खताएं बख्श देगा, और हम सबसे पहले ईमान लाने वाले थे और हमने मूसा के पास वही भेजी कि मेरे बंदों को लेकर रातों रात रवाना हो जाओ, तुम्हारा पीछा यकीनन किया जाएगा। इस पर फिरौन ने शहरों में हरकारे भेज दिए और ये कहला भेजा कि ये बनी इसराइल एक छोटी सी टोली के थोड़े से लोग हैं। और आया नंबर 55, और हकीकत ये है कि उन्होंने हमारे दिल जलाए हुए हैं और हम सब इख्तियाती तदबीर किए हुए हैं, लिहाजा सब मिलकर इनका पीछा करो। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते कि इस तरह हम इन्हें बाहर निकाल लाए, बागों और चश्मों से भी और खजानों और बाइज्जत मकामात से भी। इनका मामला तो इस तरह हुआ, और दूसरी तरफ उन चीजों का वारिस हमने बनी इसराइल को बना दिया। गर्ज हुआ ये कि ये सब लोग सूरज निकलते ही उनका पीछा करने निकल पड़े। फिर जब दोनों जत्थे एक दूसरे को नजर आने लगे तो मूसा के साथियों ने कहा कि अब तो पक्की बात है कि हम पकड़े ही जाएंगे। मूसा ने कहा कि हरगिज नहीं, मेरे साथ यकीनी तौर से मेरा परवरदिगार है जो मुझे रास्ता बताएगा। चुनाचे हमने मूसा के पास वही भेजी कि अपनी लाठी समंदर पर मारो। बस फिर समंदर फट गया और हर हिस्सा एक बड़े पहाड़ की तरह खड़ा हो गया। और आया नंबर 64, और दूसरे फरीक को भी हम उस जगह के नजदीक ले आए और मूसा और उसके तमाम साथियों को हमने बचा लिया, फिर दूसरों को गर्क कर डाला। यकीनन इस सारे वाकया में इबरत का बड़ा सामान है। फिर भी इनमें से अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। और यकीन रखो कि तुम्हारा परवरदिगार साहिब इक़्तिदार भी है और बड़ा मेहरबान भी है। और ए पैगंबर, इनको इब्राहिम का वाकया सुनाओ, जब उन्होंने अपने बाप और अपनी कौम से कहा था कि तुम किस चीज की इबादत करते हो। उन्होंने कहा कि हम बुतों की इबादत करते हैं और उन्हीं के आगे धरना दिए हुए हैं। इब्राहिम ने कहा, जब तुम इनको पुकारते हो तो क्या ये तुम्हारी बात सुनते हैं या तुम्हें कोई फायदा या नुकसान पहुंचाते हैं? उन्होंने कहा कि असल बात यह है कि हमने अपने बाप दादों को ऐसे ही करते पाया। आया नंबर 75, और इब्राहिम ने कहा, भला कभी तुमने इन चीजों को गौर से देखा भी जिनकी तुम इबादत कर रहे हो, तुम भी और तुम्हारे पुराने बाप दादा भी? मेरे लिए तो ये सब दुश्मन है सिवाय एक रब्बुल आलमीन के जिसने मुझे पैदा किया। फिर वही मेरी रहनुमाई भी फरमाता है और जो मुझे खिलाता पिलाता है, और जब मैं बीमार होता हूं तो मुझे शिफा देता है, और जो मुझे मौत देगा और जिंदा भी करेगा, और जिससे मैं उम्मीद लगाए हुए हूं कि वो हिसाब और किताब के दिन मेरी खताएं बख्श देगा। मेरे परवरदिगार मुझे हिकमत अता फरमा और मुझे नेक लोगों में शामिल कर दे, और आने वाली नस्लों में मेरे लिए वो जिक्र पैदा फरमा दे जो मेरी सच्चाई की गवाही दे, और मुझे उन लोगों में से बना दे जो नेमतों वाली जन्नत के वारिस हों। और आया नंबर 76, और मेरे बाप की मगफरत फरमा, यकीनन वो गुमराह लोगों में से है। और उस दिन मुझे रुसवा न करना जिस दिन लोगों को दोबारा जिंदा किया जाएगा, जिस दिन ना कोई माल काम आएगा ना कोई औलाद काम आएगी। हाँ, जो शख्स अल्लाह के पास सलामती वाला दिल लेकर आएगा उसको नजात मिलेगी, और जन्नत मुत्तकी लोगों के लिए कुर्बत की जगह होगी, और दोज़ख खुले तौर पर गुमराहों के सामने कर दी जाएगी। और उनसे कहा जाएगा कि कहाँ हैं वो जिनकी तुम अल्लाह को छोड़कर इबादत किया करते थे? क्या वो तुम्हारी मदद करेंगे या खुद अपना बचाव कर लेंगे? फिर उनको और गुमराहों को ऊंधे मुंह दोज़ख में डाल दिया जाएगा, और इब्लीस के सारे लश्कर को भी। हाँ, ये सब आपस में झगड़ते हुए अपने माबूदों से कहेंगे। आया नंबर 97 के अल्लाह की कसम, हम तो उस जमाने में खुली गुमराही में मुब्तला थे जब हमने तुम्हें रब्बुल आलमीन के बराबर करार दे रखा था, और हमें तो इन बड़े बड़े मुजरिमों ने ही गुमराह किया था। नतीजा ये है कि ना तो हमें किसी किस्म की सिफारिश करने वाले मुयस्सर हैं और ना कोई ऐसा दोस्त जो हमदर्दी कर सके। अब काश कि हमें एक मर्तबा दुनिया में वापस जाने का मौका मिल जाए तो हम मोमिन बन जाए। यकीनन इस सारे वाक्य में इबरत का बड़ा सामान है, फिर भी उनमें से अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। और यकीन रखो कि तुम्हारा परवरदिगार साहिब इक़्तिदार भी है और बड़ा मेहरबान भी है। नूह की कौम ने पैगंबर को झुटलाया था, जबकि उनके भाई नूह ने उनसे कहा कि क्या तुम अल्लाह से डरते नहीं हो?
यकीन जानो कि मैं तुम्हारे लिए एक ईमानदार पैगंबर हूँ। और आयत नंबर 108, लिहाजा तुम अल्लाह से डरो और मेरी बात मानो, और मैं तुमसे उस काम पर कोई किसी किस्म की उजरत नहीं मांगता। मेरा अजर तो सिर्फ उस जात ने अपने जिम्मे ले रखा है जो सारे जहानों की परवरिश करता है। लिहाजा तुम अल्लाह से डरो और मेरी बात मानो। वो लोग बोले, क्या हम तुम पर ईमान ले आए, हालांकि बड़े नीचे दर्जे के लोग तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं। नूह ने कहा, मैं क्या जानूं कि वो क्या काम करते हैं, उनका हिसाब लेना किसी और का नहीं, मेरे परवरदिगार का काम है। काश तुम समझ से काम लो, और मैं उन मोमिनों को धुतकार कर अपने से दूर नहीं कर सकता। मैं तो बस एक खबरदार करने वाला हूँ जो तुम्हारे सामने हकीकत खोल खोल कर रख रहा हूँ। आया नंबर 116, वो कहने लगे कि ऐ नूह, अगर तुम बाज ना आए तो तुम्हें पत्थर मार मार कर हलाक कर दिया जाएगा। नूह ने कहा, मेरे परवरदिगार, मेरी कौम ने मुझे झुटला दिया है। अब आप मेरे और इनके दरमियान दो टोक फैसला कर दीजिए और मुझे और मेरे मोमिन साथियों को बचा लीजिए। चुनाचे हमने उन्हें और उनके साथियों को भरी हुई कश्ती में बचा लिया, फिर उसके बाद बाकी लोगों को गर्क कर दिया। यकीनन इस सारे वाकया में इबरत का बड़ा सामान है, फिर भी उनमें से अक्सर लोग ईमान नहीं लाते हैं। और यकीन रखो कि तुम्हारे परवरदिगार साहिब इक़्तिदार भी है और बड़ा मेहरबान भी है। आद की कौम ने पैगंबर को झुटलाया, जबकि उनके भाई हूद ने उनसे कहा कि तुम अल्लाह से डरते नहीं हो। यकीन जानो कि मैं तुम्हारे लिए एक ईमानदार पैगंबर हूँ, लिहाजा तुम अल्लाह से डरो और मेरी बात मानो, और मैं तुमसे इस काम पर किसी किस्म की कोई उजरत नहीं मांगता हूँ। मेरा अजर तो सिर्फ उस जात ने अपने जिम्मे ले रखा है जो सारी दुनिया जहान की परवरिश करती है। और आय नंबर 128, क्या तुम हर ऊंची जगह पर कोई यादगार बनाकर फजूल हरकतें करते हो, और तुमने बड़ी कारीगरी से बड़ी बड़ी इमारतें इस तरह रख छोड़ी हैं जैसे तुम्हें हमेशा ही इधर रहना है, और जब किसी की पकड़ करते हो तो पक्के जालिम और जाबिर बनकर उसकी पकड़ करते हो। अब अल्लाह से डरो और मेरी बात मानो। और आय नंबर 132, और उस जात से डरो जिसने उन चीजों से नवाज कर तुम्हारी कुव्वत में इजाफा किया है। उसने तुम्हें मवेशियों और औलाद से भी नवाजा है और बागों और चश्मों से भी। हकीकत यह है कि मुझे तुम पर एक जबरदस्त दिन के अजाब का अंदेशा है। वो कहने लगे कि चाहे तुम नसीहत करो या ना करो, हमारे लिए सब बराबर है। ये बातें तो वही हैं जो पिछले लोगों की आदत रही है, और हम अजाब का निशाना बनने वाले नहीं हैं। गर्ज इन लोगों ने हूद को झुटलाया, जिसके नतीजे में हमने उनको हलाक कर दिया। यकीनन इस सारे वाकया में इबरत का बड़ा सामान है, फिर भी इनमें से अक्सर लोग ईमान नहीं लाते हैं। और यकीन रखो कि तुम्हारा परवरदिगार साहिब इक़्तिदार भी है और बड़ा मेहरबान भी है। और आया नंबर 141, कौम समूद ने पैगंबर को झुटलाया, जबकि उनके भाई साले ने उनसे कहा कि क्या तुम अल्लाह से डरते नहीं हो। यकीन जानो कि मैं तुम्हारे लिए एक ईमानदार पैगंबर हूँ, लिहाजा तुम अल्लाह से डरो और मेरी बात मानो, और मैं तुमसे इस काम पर किसी किस्म की कोई उजरत नहीं मांगता। मेरा अजर तो सिर्फ उस जात ने अपने जिम्मे ले रखा है जो सारे जहां की परवरिश करता है। क्या तुम्हें इत्मीनान के साथ इन सारी नेमतों में हमेशा रहने दिया जाएगा जो यहाँ मौजूद हैं, इन बागों चश्मों में और इन खेतों और इन नखलस्तानों में जिसके खोशे एक दूसरे में पैवस्त हैं? और क्या पहाड़ों को बड़े नाज के साथ तराश कर तुम हमेशा घर बनाते रहोगे? अब अल्लाह से डरो और मेरी बात मानो, और उन हद से गुजरे हुए लोगों का कहना मत मानो जो जमीन में फसाद फैलाते हैं और इस्लाह का काम नहीं करते। वो कहने लगे कि तुम पर किसी बड़े भारी जादू का असर है। आय नंबर 154, तुम्हारी हकीकत इसके सिवा कुछ भी नहीं है कि तुम हम जैसे ही एक इंसान हो, लिहाजा अगर सच्ची हो तो कोई निशानी ले आओ। साले ने कहा, लो ये ऊंटनी है, पानी पीने के लिए एक बारी उसकी होगी और एक मुअय्यन दिन में एक बारी तुम्हारी होगी, और उसको बुरी नीयत से हाथ भी ना लगाना, वरना एक जबरदस्त दिन के अजाब तुम्हें आ पकड़ेगा। फिर हुआ ये कि उन्होंने उस ऊंटनी की कोंचे काट डाली और आखिरकार पशेमान हुए, चुनाचे अजाब ने उन्हें आ पकड़ा। यकीनन इन सारे वाक़े में इबरत का बड़ा सामान है, फिर भी इनमें से अक्सर लोग ईमान नहीं लाते हैं। और यकीन रखो कि तुम्हारा परवरदिगार साहिब इक़्तिदार भी है और बड़ा मेहरबान भी है। और आयत नंबर 160, लूत की कौम ने पैगंबरों को झुटलाया, जबकि उसके भाई लूत ने उनसे कहा कि तुम अल्लाह से डरते नहीं हो। यकीन जानो कि मैं तुम्हारे लिए एक ईमानदार पैगंबर हूँ, लिहाजा तुम अल्लाह से डरो और मेरी बात मानो।
और मैं तुमसे इस काम पे किसी किस्म की उजरत नहीं मांगता। मेरा अजर तो सिर्फ उस जात ने अपने जिम्मे ले रखा है जो सारे जहां को परवरिश करने वाला है। क्या दुनिया जहान के सारे लोगों में तुम हो जो मर्दों के पास जाते हो और तुम्हारी बीवियां जो तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए पैदा की उनको छोड़े बैठे हो? हकीकत तो यह है कि तुम हद से गुजरे हुए लोग हो। कहने लगे कि लूत, अगर तुम बास ना आए तो तुम भी उन लोगों में शामिल हो जाओगे जिन्हें बस्ती से निकाल बाहर किया जाता है। लूत ने कहा कि यकीन जानो मैं इन लोगों में से हूं जो तुम्हारे इस काम से बिल्कुल बेजार हैं। आया नंबर 169, लूत ने ये दुआ की कि ऐ मेरे परवरदिगार, जो हरकत ये लोग कर रहे हैं मुझे और मेरे घर वालों को इससे निजात दे दे। चुनाचे हमने उनको और उनके सब घर वालों को निजात दी सिवाय एक बुढ़िया के जो पीछे रहने वालों में शामिल थी। फिर और सबको हमने तबाह कर दिया और उन पर एक जबरदस्त बारिश बरसाई। गर्ज बहुत बुरी बारिश थी जो उन पर बरसी जिन्हें पहले से डरा दिया गया था। यकीनन इस सारे वाक्य में इबरत का बड़ा सामान है। फिर भी इनमें से अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। और यकीन रखो कि तुम्हारा परवरदिगार साहिब इक्तदार भी है और बड़ा मेहरबान भी है। और आया नंबर 176, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि एका के बशिंदों ने भी अपने पैगंबरों को झुटलाया जबकि शुएब ने उनसे कहा कि क्या तुम अल्लाह से डरते नहीं हो? यकीन जानो कि मैं तुम्हारे लिए एक ईमानतदार पैगंबर हूँ, लिहाजा तुम अल्लाह से डरो और मेरी बात मानो। और मैं तुमसे इस काम पर कोई उजरत नहीं मांगता। मेरा अजर तो सिर्फ उस जात के जिम्मे है जो सारे जहानों की परवरिश करता है। पूरा पूरा नाप तोल दिया करो और उन लोगों में से ना बनो जो दूसरों को घाटे में डालते हैं, और सीधी तराजू से तोला करो और लोगों को उनकी चीजें घटाकर ना दिया करो और जमीन में फसाद मचाते मत फिरो। और आया नंबर 184, और उस जात से डरो जिसने तुम्हें भी पैदा किया और पिछली खलकत को भी। कहने लगे कि तुम पर तो किसी भारी जादू का असर है। तुम्हारी हकीकत इसके सिवा कुछ भी नहीं है कि तुम हम जैसे एक इंसान हो और हम तुम्हें पूरे यकीन के साथ झूठा समझते हैं। लिहाजा अगर तुम सच्चे हो तो हम पर आसमान से कोई टुकड़ा गिरा दो। शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा परवरदिगार खूब जानता है कि तुम क्या कर रहे हो। गर्ज इन लोगों ने शुएब को झुटलाया जिसके नतीजा ये हुआ कि उन्हें साइबान वाले दिन के अजाब ने आ पकड़ा। बेशक वो एक बड़ा जबरदस्त अजाब था। यकीनन इस सारे वाकया में इबरत का बड़ा सामान है। फिर भी इनमें से अक्सर लोग ईमान नहीं लाते हैं। और यकीन रखो कि तुम्हारा परवरदिगार साहिब इक्तदार भी है और बड़ा मेहरबान भी है। आया नंबर 192, बेशक ये कुरान रब्बुल आलमीन का नाजिल किया हुआ है। ईमानतदार फरिश्ता इसे लेकर उतरा है। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे कल पर उतरा है ताकि तुम इन पैगंबरों में शामिल हो जाओ जो लोगों को खबरदार करते हैं। ऐसी अरबी जुबान में उतारा है जो पैगाम को वाजे कर देने वाली है। और इस कुरान का तज़किरा पिछली आसमानी किताबों में भी मौजूद है। भला क्या इन लोगों के लिए ये कोई दलील नहीं है कि बनी इसराइल के उलमा इससे वाकिफ है? और अगर हम ये किताब अजमी लोगों में से किसी पर नाजिल कर देते, आय नंबर 199, और वो उनके सामने पढ़ भी देता तो ये लोग तब भी उस पर ईमान ना लाते। मुजरिमों के दिलों में तो हमने इसको इसी तरह दाखिल किया है। ये लोग इस पर उस वक्त तक ईमान नहीं लाएंगे जब तक कि कोई दर्दनाक अजाब आंखों से ना देख ले और वो उनके पास इस तरह अचानक आ खड़ा हो कि इनको पता भी ना चले। फिर ये कह उठे कि क्या हमें कुछ मोहलत मिल सकती है? तो क्या ये लोग हमारे अजाब के लिए जल्दी मचा रहे हैं? नंबर 205, भला बताओ अगर हम कई साल तक इन्हें ऐश का सामान मुहैया करते रहें, फिर वो अजाब इनके ऊपर आ खड़ा हो जिससे उन्हें डराया जा रहा है, तो ऐश का जो सामान उनको दिया जाता रहा वो इन्हें अजाब के वक्त क्या फायदा पहुंचा सकता है? और हमने किसी बस्ती को इसके बगैर हलाक नहीं किया कि पहले उसके लिए खबरदार करने वाला मौजूद ना हो ताकि वो नसीहत पकड़े। और हम ऐसे तो नहीं है कि जुल्म करें। और इस कुरान को शयातीन लेकर नहीं उतरे हैं और ना ही तो ये उनके मतलब का है और ना ही वो ऐसा कर सकते हैं। उन्हें तो वही के सुनने से भी रोक दिया गया है। लिहाजा अल्लाह के साथ कोई माबूद ना मानो, कहीं तुम भी उन लोगों में शामिल ना हो जो जिन्हें अजाब होगा। और ए पैगंबर, तुम अपने करीब तरीन खानदान को खबरदार करो और जो मोमिन तुम्हारे पीछे चले उनके लिए इनकिसारी के साथ अपनी शफकत का बाजू झुका दो। और अगर ये तुम्हारी नाफरमानी करे तो कह दो कि जो कुछ तुम कर रहे हो इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, और उस अल्लाह पर भरोसा रखो जो बड़ा इक़्तिदार वाला और बहुत मेहरबान है, जो तुम्हें उस वक्त भी देखता है जब तुम इबादत के लिए खड़े होते हो।
अल्लाह अकबर। गौर कीजिए कि वो तुम्हें उस वक्त भी देखता है जब तुम इबादत के लिए खड़े होते हो, और सजदा करने वालों के दरमियान तुम्हारी आमदोरफ्त को भी देखता है। यकीन रखो कि वही है जो हर बात सुनता है और हर चीज जानता है। क्या मैं तुम्हें बताऊं कि शयातीन किन लोगों पर उतरते हैं? आय नंबर 222, वो हर ऐसे शख्स पर उतरते हैं जो परले दर्जे का झूठा और गुनाहगार हो। वो सुनी सुनाई बात ला डालते हैं और उनमें से अक्सर झूठे होते हैं। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि रहे शायर लोग तो उनके पीछे तो बेराह लोग चलते हैं। क्या तुमने नहीं देखा कि वो हर वादी में भटकते फिरते हैं, और ये कि वो ऐसी बातें कहते हैं जो करते नहीं हैं। और अब इस सूरह की आखिरी आया अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, हाँ मगर वो लोग इससे मुस्तस्ना है जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए और अल्लाह को कसरत से याद किया और अपने ऊपर जुल्म होने के बाद इससे बदला लिया। और जुल्म करने वालों को अनकरीब पता चल जाएगा कि वो किस अंजाम की तरफ पलट रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, यहाँ पे सूरत अश-शुरा खत्म होती है। अब इंशाअल्लाह जी शुरू करते हैं सूरत नमल। थोड़ा सा तारुफ देख लेते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह अन्हुमा की एक रवायत के मुताबिक ये सूरत पिछली सूरत यानी सूरत शुरा के फौरन बाद नाजिल हुई थी। दूसरी मक्की सूरतों की तरह इसका मौजू भी इस्लाम के बुनियादी अकायद का इस्बात और कुफर के बुरे नताज का बयान है। हजरत मूसा और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के वाक़यात की तरफ मुख्तसर इशारा करते हुए ये बताया गया कि उनकी कौमों ने इस बिना पर उनकी बात नहीं मानी कि उन्हें अपनी दौलत और अपने समाजी रुतबे पर घमंड था। इसी तरह कफार मक्का भी घमंड में मुब्तला होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इनकार कर रहे थे। दूसरी तरफ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हर तरह की दौलत और बेनज़ीर बादशाह से नवाजा था, लेकिन ये दौलत और बादशाहत उनके लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात पर अमल करने से माने नहीं थी। इसी तरह सबा की मलका बिल्किस भी बहुत दौलतमंद थी, लेकिन हक वाज़े होने के बाद उसने उसको फौरन कबूल कर लिया। इस सूरत में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और सबा की मलका का वाकया बड़ी तफसील से बयान हुआ है और इसके बाद कायनात में फैली हुई कुदरत खुदाबंदी की निशानियों को बड़ी मौसर तरीके से जिक्र फरमाया गया है, जिससे अल्लाह सुब्हानहू तआला की वहदानियत साबित होती है। नमल के मानी अरबी जुबान में चूंटी के हैं और चुनाचे इस सूरत की आय नंबर 18 में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ये वाकया बयान हुआ है कि वो चूंटियों की वादी के पास से गुजरे थे, इसलिए सूरत का नाम नमल रखा गया है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये सूरह मक्की सूरह है और इसमें 93 आयतें और 7 रुकू हैं। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। तौसीन, ये हरूफ मक़त्तात हैं। ये कुरान की और एक ऐसी किताब की आयतें हैं जो हकीकत खोल देने वाली है। ये उन मोमिनों के लिए सरापा हदायत और खुशखबरी बनकर आई है जो नमाज कायम करते हैं, जो ज़कात अदा करते हैं और वही हैं जो आखिरत पर यकीन रखते हैं। हकीकत यह है कि जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते, हमने उनके अमाल को उनकी नज़रों में खुशनुमा बना दिया है, इसलिए वो भटकते फिरते हैं। यही वो लोग हैं जिनके लिए बड़ा अजाब है और वही है जो आखिरत में सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाले हैं। और ए पैगंबर, बिलाशुबा तुम्हें ये कुरान इस अल्लाह की तरफ से अता किया जा रहा है जो हिकमत का भी मालिक है और इल्म का भी मालिक है। और आय नंबर 7, उस वक़्त को याद करो जब मूसा ने अपने घर वालों से कहा था कि मुझे एक आग नजर आई है, मैं अभी तुम्हारे पास वहां से कोई खबर लेकर आता हूँ या फिर तुम्हारे पास आग का कोई शोला उठा कर ले आऊंगा ताकि तुम आग से गर्मी हासिल करो। चुनाचे जब वो उस आग के पास पहुंचे तो उन्हें आवाज दी गई कि बरकत हो उन पर भी जो इस आग के अंदर है और उस पर भी जो इसके आसपास है, और पाक है अल्लाह जो सारे जहानों का परवरदिगार है। बात यह है कि मैं अल्लाह हूँ, बड़े इक़्तिदार वाला हूँ और बड़ी हिकमत वाला हूँ। और जरा अपनी लाठी को नीचे फेंको। फिर जब उन्होंने लाठी को देखा तो वो इस तरह हरकत कर रही थी जैसे कोई सांप हो, तो वो पीठ फेर कर भाग गए और पीछे मुड़कर भी ना देखा। इरशाद हुआ, मूसा डरो नहीं, जिनको पैगंबर बनाया जाता है उनको मेरे हजूर कोई अंदेशा नहीं होता। और आय नंबर 11, इल्ला ये कि किसी ने कोई ज्यादती की हो फिर वो बुराई को बदल कर उसके बाद अच्छे काम कर ले तो मैं बहुत बख्शने वाला और बड़ा मेहरबान हूँ। और अपना हाथ अपने गिरेबान में दाखिल करो तो वो किसी बीमारी के बगैर सफेद होकर निकलेगा। ये दोनों बातें उन 9 निशानियों में से हैं जो फिरौन और उसकी कौम की तरफ तुम्हारे जरिए भेजी जा रही हैं। हकीकत ये है कि वो नाफरमान लोग हैं। फिर हुआ ये कि जब उनके पास हमारी निशानियां इस तरह पहुंची कि वो आंखें खोलने वाली थी तो उन्होंने कहा कि ये तो खुला जादू है, और अगरचे इनके दिलों में इसकी सच्चाई का यकीन हो चुका था मगर उन्होंने जुल्म तकब्बर की वजह से इससे इनकार किया। अब देख लो
کہ इन फसाद मचाने वालों का अंजाम कैसा हुआ। और आयत नंबर 15 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते और हमने दाऊद और सुलेमान को इल्म अता किया। उन्होंने कहा कि तमाम तारीफें अल्लाह की हैं जिसने हमें अपने बहुत से मोमिन बंदों पर फजीलत अता फरमाई। और सुलेमान अलैहिस्सलाम को दाऊद की विरासत मिली। उन्होंने कहा कि लोगों, हमें परिंदों की बोलियां सिखाई गई हैं और हमें हर जरूरत की चीज अता की गई है। यकीनन ये अल्लाह सुब्हानहू तआला का खुला हुआ फजल है। और सुलेमान के लिए उनके सारे लश्कर जमा कर दिए गए थे जो जन्नात, इंसानों और परिंदों पर मुश्तमिल थे, चुनाचे उन्हें काबू में रखा जाता था। और आयत नंबर 18, यहाँ तक कि एक दिन जब वो सब चूंटियों की वादी में पहुंचे तो एक चूंटी ने कहा कि चूंटियों, अपने अपने घरों में घुस जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान और उसका लश्कर तुम्हें पीस डाले और उन्हें पता भी ना चले। उनकी इस बात पर सुलेमान मुस्कुराकर हंसे और कहने लगे कि मेरे परवरदिगार, मुझे इस बात का पाबंद बना दीजिए कि मैं उन नेमतों का शुक्र अदा करता रहूं जो आपने मुझे और मेरे वालिदैन को अता फरमाई हैं, और वो नेक अमल करूं जो आपको पसंद हो, और अपनी रहमत से मुझे अपने नेक बंदों में शामिल कर लीजिए। और उन्होंने एक मर्तबा परिंदों की हाजिरी ली तो कहा कि क्या बात है, मुझे हुदहुद नजर नहीं आ रहा, क्या वो कहीं गायब हो गया है? मैं उसे सख्त सजा दूंगा या उसे ज़बह ही कर डालूंगा, इल्ला ये कि मेरे सामने कोई वाज़ेह वजह बयान करे। आया नंबर 22, फिर हुदहुद ने ज्यादा देर नहीं लगाई और आकर कहा कि मैंने ऐसी मालूमात हासिल की हैं जिनका आपको इल्म नहीं है, और मैं मुल्क के सबा से आपके पास एक यकीनी खबर लेके आया हूँ। मैंने वहां एक औरत को पाया जो उन लोगों पर बादशाहत कर रही थी, और उसको हर तरह का साजो सामान दिया गया है, और उसका एक शानदार तख्त भी है। मैंने उस औरत और उसके कौम को पाया कि वो अल्लाह को छोड़कर सूरज के आगे सजदा करते हैं, और शैतान ने उनको ये सुझा दिया है कि उनके अमाल बहुत अच्छे हैं, चुनाचे उसने उन्हें सही रास्ते से रोक रखा है, और इस तरह वो हदायत से बहुत दूर निकल गए हैं कि अल्लाह को सजदा नहीं करते जो आसमान और जमीन की छुपी हुई चीजों को बाहर निकाल लाता है। और तुम जो कुछ छुपाओ और जो कुछ जाहिर करो सब कुछ जानता है। अल्लाह तो वो है जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, और जो अर्शे अजीम का मालिक है। और आया नंबर 27, सुलेमान ने कहा कि हम अभी देख लेते हैं कि तुमने सच कहा है या झूठ बोलने वालों में शामिल हो गए हो। मेरा ये खत लेकर जाओ और उनके पास डाल देना, फिर अलग हट जाना और देखना कि वो क्या जवाब देते हैं। चुनाचे हुदहुद ने ऐसा ही किया, और मलका ने अपने दरबारियों से कहा कि कौम के सरदारों, मेरे सामने एक बावकार खत डाला गया है। वो सुलेमान की तरफ से आया है, और वो अल्लाह के नाम से शुरू किया गया है जो रहमान और रहीम है। उसमें लिखा है कि मेरे मुकाबले में सरकशी ना करो और मेरे पास ताबेदार बनकर चले आओ। मलका ने कहा कि कौम के सरदारों, जो मसला मेरे सामने आया है उसमें मुझे फैसला गुन मशवरा दो। मैं किसी मसले का हतमी फैसला उस वक्त तक नहीं करती जब तक तुम मेरे पास मौजूद ना हो। उन्होंने कहा कि हम ताकतवर और डट कर मुकाबला करने वाले लोग हैं, आगे मामला आपके सुपुर्द है, अब आप देख लीजिए कि क्या हुक्म देती हैं। और आया नंबर 34, मलका बोली, हकीकत यह है कि बादशाह लोग जब किसी बस्ती में घुस आते हैं तो उसे खराब कर डालते हैं और उसके बाइज्जत बशिंदों को जलील कर छोड़ते हैं, और यही कुछ ये लोग भी करेंगे। और मैं इनके पास एक तोहफा भेजती हूँ, फिर देखूंगी कि एलची क्या जवाब लेकर वापस आता है। चुनाचे जब एलची सुलेमान के पास पहुंचा तो उन्होंने कहा, क्या तुम माल से मेरी मदद करना चाहते हो? इसका जवाब यह है कि अल्लाह ने जो कुछ मुझे दिया है वो उससे कहीं बेहतर है जो तुम्हें दिया गया है। अलबत्ता तुम ही लोग अपने तोहफे पर खुश हो, उनके पास वापस जाओ, क्योंकि अब हम उनके पास ऐसे लश्कर को भेजेंगे जिनके मुकाबले की उनमें ताब नहीं होगी, और उन्हें वहां से इस तरह निकालेंगे कि वो जलील होंगे और मातहत बनकर रहेंगे। सुलेमान ने कहा कि ए अहले दरबार, तुम में से कौन है जो उस औरत का तख्त उनके ताबेदार बनकर आने से पहले ही मेरे पास ले आए? आया नंबर 39, एक कवि हैकल जी ने कहा, आप अपनी जगह उठे बिना होंगे कि मैं उससे पहले ही उसे आपके पास ले आऊंगा, और यकीन रखिए कि मैं इस काम में पूरी ताकत रखता हूँ और ईमानदार भी हूँ। जिसके पास किताब का इल्म था वो बोल उठा कि मैं आपको आंख झपकने की देर तक ही आपके सामने ले आऊंगा। चनाचे जब सुलेमान ने वो तख्त अपने सामने रखा हुआ देखा तो कहा कि ये मेरे परवरदिगार का फजल है, ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूँ या ना शुक्री करता हूँ। और जो कोई शुक्र करता है तो वो अपने ही फायदे के लिए शुक्र करता है, और जो कोई नाशुक्री करता है तो मेरे परवरदिगार को उसकी कोई परवाह नहीं है, वो बेनियाज है और बड़ा करीम है। आया नंबर 41, सुलेमान ने अपने खुदाम से कहा कि इस मलका के तख्त को इसके लिए अजनबी बना दो।
देखें कि वो उसको पहचानती है या नहीं पहचानती, या वो उन लोगों में है जो हकीकत तक नहीं पहुंचते। गज जब वो आई तो उससे पूछा गया कि क्या तुम्हारा तख्त ऐसा ही है? कहने लगी कि ऐसा लगता है कि ये तो बिल्कुल वही है, हमें तो इससे पहले ही आपकी सच्चाई का इल्म अता हो गया था और हम तो सर झुका चुके थे, और अब तक उसको ईमान लाने से इस बात ने रोक रखा था कि वो अल्लाह के बजाय दूसरों की इबादत करती थी और एक काफिर कौम से ताल्लुक रखती थी। उससे कहा गया कि इस महल में दाखिल हो जाओ। उसने जो देखा तो ये समझी कि ये पानी है, इसलिए उसने पौंचे चढ़ाकर अपनी पिंडलियां खोल दी। सुलेमान ने कहा कि ये तो महल है जो शीशों की वजह से शफाफ नजर आ रहा है। मलका बोल उठी, मेरे परवरदिगार, हकीकत यह है कि मैंने अब तक अपनी जान पर जुल्म किया और अब मैंने सुलेमान के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत की फरमाबरदारी कबूल कर ली है। और आया नंबर 45, और हमने कौम समूद के पास उसके भाई साले को ये पैगाम देकर भेजा कि तुम अल्लाह की इबादत करो, तो अचानक वो दो गिरोह बन गए जो आपस में झगड़ने लगे। साले अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरी कौम के लोग, अच्छाई से पहले बुराई की क्यों जल्दी मांगते हो? तुम अल्लाह से माफी क्यों नहीं मांगते ताकि तुम पर रहम किया जाए? उन्होंने कहा, हमने तो तुमसे और तुम्हारे साथियों से बड़ा बुरा शुगुन लिया है। साले ने कहा, तुम्हारा शुगुन तो अल्लाह के कब्जे में है, अलबत्ता तुम लोगों की आजमाइश हो रही है। और शहर में 9 आदमी ऐसे थे जो जमीन में फसाद मचाते थे और इस्लाह का काम नहीं करते थे। उन्होंने आपस में एक दूसरे से कहा कि सब मिलकर अल्लाह की कसम खाओ कि हम साले और उसके घर वालों पर रात के वक्त हमला करेंगे, फिर उसके वारिस से कह देंगे कि हम इनके घर वालों की हलाकत के वक्त मौजूद ही ना थे, और यकीन जानो कि हम बिल्कुल सच्चे हैं। उन्होंने ये चाल चली और हमने भी एक चाल चली, इसी तरह चली कि उनको पता भी ना चल सका। अब देखो कि उनकी चालबाजियों का अंजाम कैसा हुआ, और हमने उन्हें और उनकी सारी कौम को तबाह करके रख दिया। और आया नंबर 52, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि चुनाचे ये है वो घर जो उनके जुल्म की वजह से वीरान पड़े हुए हैं। यकीनन इस वाक़या में उन लोगों के लिए इबरत का समान है जो इल्म से काम लेते हैं और जो लोग ईमान लाए थे और तकवा इख्तियार किए हुए थे, उन सब को हमने बचा लिया। और हमने लूत को पैगंबर बनाकर भेजा, जबकि उन्होंने अपनी कौम से कहा था कि क्या तुम खुली आंखों देखते हुए भी बेहयाई का ये काम करते हो? क्या ये कोई यकीन करने की बात है कि तुम अपनी जिनसी ख्वाहिश के लिए औरतों को छोड़कर मर्दों के पास जाते हो? हकीकत यह है कि तुम बड़ी जहालत का काम करने वाले हो। इस पर यह कहने के सिवा उनकी कौम का कोई जवाब न था कि लूत के घर वालों को इस बस्ती से निकाल बाहर करो, ये बड़े पाकबाज बनते हैं। फिर हुआ ये कि हमने लूत और उसके घर वालों को तो बचा लिया, सिवाय उसकी बीवी के, जिसके बारे में हमने ये तय कर दिया था कि वो पीछे रह जाने वालों में शामिल रहेगी। और आया नंबर 58, और हमने उन पर एक जबरदस्त बारिश बरसाई। चुनाचे बहुत बुरी बारिश थी जो उन लोगों पर बरसी जिन्हें पहले से खबरदार तो किया गया था। और अब पारा नंबर 19 की आखिरी आया। अभी ये सूरत खत्म नहीं हुई है, लेकिन पारा नंबर 20 में इंशाल्लाह हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो इस पारा की आखिरी आयत अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ए पैगंबर, कहो कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं और सलाम हो उनके उन बंदों पर जिनको उसने मुंतखब फरमा दिया। बताओ कि अल्लाह बेहतर है या वो जिनको उन लोगों ने अल्लाह की खुदाई में शरीक बना रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अब इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। टेस्ट देना नहीं भूलिएगा और इसके साथ साथ याद रखिएगा कि आपने हर पारा अपने तमाम लव वंस के साथ शेयर करना है ताकि हम सब के लिए सदका जारिया बन जाए। इंशाल्लाह जी, अब इजाजत दीजिए। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।